औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, मेरा नाम प्रोफ़ेसर इमरान मोहसिन है। मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। आज हम बेटा आई कॉम पार्ट सेकंड अकाउंटिंग का राउंड 4 टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट MCQs। पहला MCQ है, द कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज़ क्रिएटेड बाय ऑप्शन ए government, option B employee, option C registrar, option D law. The correct option is option D law. Second MCQ is, which value of share quoted in stock exchange? Option A market price, option B par value, option C face price, option D intrinsic value. The correct option is option A market price. Next MCQ is, interim dividend is paid. Option A beginning of the year, option B end of the year, option C during the year, option D none. The correct option is option C during the year. Next MCQ is, joint stock company is formed under Companies Ordinance option A 1928, option B 1932, option C 1972, option D none. The correct option is D none. Next MCQ, debenture holders are option A creditor, option B debtor, option C owner, option D all. The correct option is option A creditors. Company is formed by option A promoters, option B directors, option C government, option D all. The correct option is option A promoters. It contains the fundamental conditions upon which alone a company can incorporate. Option A memorandum of association, option B articles of association, option C partnership deed, option D prospectus. The correct option is option A memorandum of association. Next MCQs, the liability of a member in a joint stock company is generally option A unlimited, option B limited, option C contingent, option D A and B. The correct option is option B limited. Next MCQs beta, shares offered to public for condition or for contribution are called option A issued capital, option B authorized capital, option C paid up capital, option D subscribed capital. The correct option is option A issued capital. Next MCQs beta, if a share of rupees 100 is issued at 10% premium, then issued price will be option A rupees 100, option B rupees 110, option C 90, option D none. Correct option is rupees 110. Next beta subjective part हमारा, answer the short questions. Number 1, define certificate of incorporation. A certificate which is issued by company's registrar after the registration under the Companies Ordinance 1984 to promoters of a company is called certificate of incorporation. सदाकत, ऐसा सर्टिफिकेट जो कंपनी के रजिस्ट्रार की तरफ से कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए प्रमोटर्स को जारी किया जाए, उसे सदाकतनामा तश्कील कहते हैं. सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी. अवामी कंपनी और निजी कंपनी की तारीफ करें. पब्लिक कंपनी, अ कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड बाय एट लीस्ट 7 members and there is no limit to the maximum members. The public limited company invites applications from investors through advertisement in the newspapers, giving full detail of the objects, share capital and allotment of shares. Private company, according to Companies Ordinance 1984, it can be formed at least by 2 persons and maximum members cannot exceed 50. The company cannot transfer, sells and issue its share to the public. अवामी कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी जिसके मेंबरान की तादाद कम अज़ कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरान की तादाद पर कोई पाबंदी ना हो, अवामी कंपनी कहलाती है. ऐसी कंपनी के हिस्सेदार आवाम होते हैं और इसके हिस्से की ख़रीदारी के लिए बज़रिया अखबारी तशहीर या प्रॉस्पेक्टस दावत दी जाती है. निजी कंपनी ऐसी कंपनी जिसके मेंबरान की तादाद कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो
और कंपनी को हिस्से अवाम को फ़रोग़ करने, मुंतकिल करने और जारी करने की इजाज़त ना हो, उसे हम निजी कंपनी का नाम देते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर। हिस्सादार और तमस्दार में क्या फ़र्क है? शेयर होल्डर, अ पर्सन हैविंग द शेयर्स इज़ कॉल्ड शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। जिस शख्स के पास हिस्से हों उसको कंपनी का हिस्सादार कहते हैं। शेयर होल्डर इज़ द ऑनर ऑफ द कंपनी। हिस्सादार को कंपनी का मालिक भी कहते हैं। द रेम्यूनरेशन ऑफ शेयर होल्डर इज़ डिविडेंड। हिस्सादारों का मुआवजा मकसूम कहलाता है। डिबेंचर होल्डर, अ पर्सन हैविंग द डिबेंचर इज़ कॉल्ड डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी। जिस शख्स के पास तमस्कात हों उसको कंपनी का तमस्कदार कहते हैं। डिबेंचर होल्डर इज़ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तमस्कदार कंपनी का कर्जख्वाह होता है। द रेम्यूनरेशन ऑफ डिबेंचर होल्डर इज़ इंटरेस्ट। तमस्कदारों का मुआवजा सूद कहलाता है। डिफाइन चार्टर्ड कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कंपनी। मंशूरी कंपनी और आइनी कंपनी की तारीफ़ करें। चार्टर्ड कंपनी, द कंपनीज फॉर्म्ड बाय द रॉयल चार्टर्ड इज़ कॉल्ड चार्टर्ड कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ऑफ इंग्लैंड। स्टैट्यूटरी कंपनी, द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ फॉर्मर गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंट और बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मंशूरी कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी जो शाही फरमान के तहत वजूद में आए मंशूरी कंपनी कहलाती है, मसलन बैंक ऑफ इंग्लैंड। आइनी कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी जो गवर्नर जनरल, सदर मुमलिकत, मुल्की पार्लियामेंट या आइन साज असम्बली के किसी ऑर्डर के तहत वजूद में आए आइनी कंपनी कहलाती है, मसलन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिफाइन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। इब्तदाई अखराजात की तारीफ़ करें। The expenses which are incurred on the formation of the company and which are necessary to start and run the company is called preliminary expenses। ऐसे अखराजात जो कंपनी की तश्कील के वक्त बर्दाश्त किए जाएं और कंपनी को शुरू करने और चलाने के लिए लाजमी इब्तदाई अखराजात कहलाते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, a company has an authorized capital of rupees 5 lakh divided into 50,000 shares of rupees 10 each. The company issued 30,000 shares to public for subscription. Pass the necessary journal entries and balance sheet. If the shares are issued, option 1 at par, requirement 2 at premium 20% and requirement 3 discount 100%, discount 10%। अब बेटा यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे इशुएंस ऑफ शेयर एट पार। इसमें हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज दर्ज करेंगे। सबसे पहली एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब हमारे पास 30,000 शेयर्स हमने ऑफ़र किए हैं और 30,000 ही एप्लीकेशन हमने वसूल की, तो 30,000 को हम ज़रब 10 पार वैल्यू से करेंगे तो 3 लाख रुपए डेबिट साइड पे आएगा और शेयर एप्लीकेशन को भी 3 लाख रुपए से क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पे रिफ़ंड का कोई केस नहीं है, लिहाजा रिफ़ंड की एंट्री हम छोड़ देंगे। अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 30,000 ज़रब 10, 30,000 ज़रब 10, 3 लाख रुपए डेबिट और 3 लाख रुपए क्रेडिट टू रिकॉर्ड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब इसका बेटा बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ेगा? एसेट साइड पे आप बैंक साइड पे लिखेंगे बेटा 3 लाख रुपए। इक्विटी साइड पे सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10 ईच। 5 लाख रुपए अमाउंट के कॉलम में लिख के इसे डबल लाइन कर देना है। इसका मतलब बेटा ये है कि ये जो है बैलेंस शीट में दर्ज किया जाएगा, लेकिन इसका टोटल के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, ये बेटा तीनों ही 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच 3 लाख आ जाएगा। तो टोटल एसेट्स भी आपके 3 लाख और टोटल इक्विटीज़ भी आपके 3 लाख। इस तरीके से बैलेंस शीट का आंसर दोनों साइडों का आपका बराबर आना चाहिए। सेकंड केस, जब हम शेयर्स प्रीमियम पर इशू करेंगे तो अब हमारी इशूड प्राइस 10 रुपये की बजाय 12 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 20% 10 का हम लेकर उस 2 रुपये जो आएगा वो 10 में जमा करेंगे तो वो 12 रुपये बन जाएगा। तो अब बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। 30,000 ज़रब 12, 30,000 ज़रब 12, 3,60,000 रुपये से डेबिट किया जाएगा बैंक अकाउंट को, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 3,60,000 से क्रेडिट किया जाएगा टू रिकॉर्ड द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन।
सेकेंड एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन बेटा 3,60,000 से डेबिट, शेयर कैपिटल 3 लाख रुपये से क्रेडिट होगा और शेयर प्रीमियम 60,000 रुपये से क्रेडिट किया जाएगा। टू रिकॉर्ड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बैलेंस शीट में बेटा एसेट साइड पे बैंक हमारे 3,60,000 रुपये से दर्ज किया जाएगा। ऑथोराइज कैपिटल बेटा उसी तरीके से 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख रुपये। इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल 3,30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 3 लाख रुपये। और शेयर प्रीमियम आपका बेटा इक्विटी साइड पे दर्ज करेंगे 60,000 रुपये से। इस तरीके से टोटल एसेट्स भी आपके 3,60,000 रुपये की होंगी और टोटल इक्विटीज़ भी आपकी 3,60,000 रुपये की होंगी। थर्ड रिक्वायरमेंट आपकी, जब हम शेयर्स डिस्काउंट पर जारी करेंगे तो पहली एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब जब आप 10 रुपीज़ का 10% लेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। डिस्काउंट की वैल्यू को हम पार वैल्यू में से माइनस करेंगे तो आपकी इशूड प्राइस जो है वो 9 रुपीज़ आ जाएगी बेटा। तो 330,000 मल्टीप्लाइड बाई 9, 2,70,000 आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी 2,70,000 रुपये से क्रेडिट किया जाएगा। सेकेंड एंट्री हमारी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,70,000 रुपये से, डिस्काउंट ऑन शेयर डेबिट 30,000 रुपये से और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3 लाख रुपये से। इसका बैलेंस शीट के ऊपर बेटा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एसेट साइड पर बैंक अकाउंट में हम 2,70,000 रुपये लिखेंगे और डिस्काउंट ऑन शेयर 30,000 आएगा। इक्विटी साइड पर ऑथोराइज कैपिटल 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख रुपये। इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 3 लाख रुपये। इस तरीके से टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटीज़ आपकी 33 लाख के इक्वल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स एंड इट्स रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेटा रिडेम्पशन का मतलब होता है वापस करना। तो अब हम जो है वो डिबेंचर्स जारी करने और उसकी वापसी दोनों का जो है वो एंट्री दर्ज करेंगे। पहली एंट्री आपकी, द कंपनी इशूड 2,006% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। अब इसका जो इफ़ेक्ट होगा बेटा, जनरल जर्नल में बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 2,000 रुपये, 2,000 डिबेंचर ज़रब 100 वो 2 लाख रुपये आ जाएगा और 6% डिबेंचर 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 लाख। सेकेंड एंट्री आपकी है बेटा, डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो अब बेटा बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2,000 ज़रब 100, 2 लाख रुपये से। लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर 2,000 ज़रब 10, 20,000 रुपये। 6% डिबेंचर 2,000 ज़रब 100, 2 लाख रुपये से। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 2,000 ज़रब 10, 20,000 से। नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री बेटा, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। याद रखिएगा बेटा, जब भी डिबेंचर जो है वो पार पर वापसी किया जाएगा तो उसकी हम इफ़ेक्ट इशुएंस वाला ही दर्ज करेंगे। अब यहाँ पे हम सिंपल इशुएंस ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट की एंट्री दर्ज करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 ज़रब 90, 1,80,000 रुपये। डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर 2,000 ज़रब 10, 20,000 रुपये। 6% डिबेंचर 2,000 ज़रब 100, 2 लाख रुपये। फोर्थ एंट्री बेटा, डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा 2,000 ज़रब 110, 2,20,000 रुपये। डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 2,000 ज़रब 10, 20,000 रुपये। 6% डिबेंचर 2,000 ज़रब 100, 2 लाख रुपये से क्रेडिट। प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर क्रेडिट होगा 2,000 रुपये, 2,000 डिबेंचर ज़रब 10 रुपये, 20,000 रुपये से। और प्रॉफिट ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर 2,000 ज़रब 10, 20,000 रुपये से क्रेडिट होगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी लास्ट एंट्री, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। बैंक अकाउंट डेबिट बेटा 2,000 रुपये, 2,000 डिबेंचर ज़रब 99 रुपये, 1,98,000 रुपये डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर 2,000 ज़रब 1, 2,000 रुपये से डेबिट। और 6% डिबेंचर 2,000 ज़रब 100, 2 लाख रुपये से क्रेडिट होगा। बेटा मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।
अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।